Hello students, in text question number 5. Question is, we have solids, solids are given. We have to classify them on the basis of nature of intermolecular forces. ठीक है, ये हमें क्लासीफाई करना है. सॉलिड्स हमें दिए हुए हैं. We already discussed in our lecture of types of crystalline solid that crystalline solids are classified in 4 parts. Classify in 4 parts. One is ionic solid, second one is metallic solid, and then उसके बाद हमारे पास दो थे. कौन कौन से? तो covalent solid and molecular solid. Okay, so we have to classify on the basis of nature of intermolecular forces. Okay, in ionic solid, intermolecular forces is electrostatic force of attraction, whereas in metallic solids is positive metal plus free electron, and in covalent force of attraction is covalent bond, and in constituent in molecular solid in molecular solid further classify in 3 parts. Molecular solid further classify in 3 parts. Okay, non-polar, polar, and hydrogen bonding molecular solid. Non-polar non-polar in non-polar intermolecular forces is weak dispersion forces, whereas in polar molecular solid dipole interaction, whereas in hydrogen bonding, H bond is our intermolecular forces. Okay, so one by one we are going to understand. For potassium sulfate means K2SO4. Okay, if we ionize this we get K plus 2 plus SO4 minus 2, means K plus 2 ion and SO4 ion combine with each other and gives K2SO4. So we can here say that K2SO4 is ionic solid. K2SO4 is ionic solid. Then zinc means tin. Okay, zinc नहीं tin मतलब Sn. This is the tin is a Sn and tin is metallic. Tin is metal. Therefore we put in metallic solid. Benzene, urea, ammonia, water, these all are molecules. These all are molecules. Therefore we put in molecular solid. ZnSO4. ZnSO4, if we ionize, gives Zn plus 2 and SO4 minus 2. ZnSO4, Zn plus 2, SO4 minus 2, means Zn plus 2 and SO4 minus ion combine with each other and give ZnSO4. Therefore we have to put here, therefore we are going to put ZnSO4 in ionic solid. सॉरी ZnSO4 नहीं है, जिंक सल्फाइड है, मतलब कि ZnS. जिंक सल्फाइड मतलब ZnS है, तो यहाँ पे Zn plus 2 and S minus 2. These two ions combine with each other and give ZnS. Okay, then graphite is nothing but different arrangement of carbon, different arrangement of carbon, and carbon is non-polar. And we know that in covalent solids constituent particle is non-polar. Therefore we have to put graphite in covalent solid. Silicon carbide is also covalent solid. Okay, question number 6. We have solid A. We have wait we have solid A, which is hard. Solid A is hard and electrical insulator in solid as well as molten state, and melting point, melt at extremely high temperature. Therefore melting point is also high.
we have to answer that what type of solid is it. We already discussed in the lecture types of crystalline solid. What is covalent solid? We discussed that in covalent solid constituent particle are non-metals. Also we discussed that melting point and boiling point is high. Melting point and boiling point is high. Then we discussed the nature that covalent solids are hard and brittle, and we also discussed the conductivity. We also discussed the conductivity, and we need we discussed that the hard solids which are hard in nature are insulator means they are not passing the electricity. So here solid A is called covalent solid. This all the property, whatever the property is given, this all the property is solids of this all the property is of a covalent solid, of a covalent solid. Question number 7. Ionic solid conduct electricity in molten state as well as solid state. We have to explain this sentence. Okay. We already discussed that in ionic solid constituent particles are ions, which are cations and anions. Okay, which are cations and anions. Also we discussed the force of attraction, which is electrostatic force, and melting point and boiling point is high. Melting point and boiling point is high. Nature of ionic solid is hard and brittle. Nature of ionic solid is hard and brittle. Then we discuss the conductivity. We discuss that ionic solids are electrical insulator, whereas in molten state they are a good conductor of electricity. There we discuss that NaCl. That NaCl is a NaCl in solid state is electrical insulator. Electrical insulator, but when we melt this NaCl in water, we get the solution of NaCl. We get the solution of NaCl, and in that solution we have Na plus and Cl minus ion in aqueous form. In aqueous form. Here in NaCl, constituent particles means Na plus and Cl minus ions are very close to each other, whereas in aqueous state the constituent particles are not very strongly attracted towards each other. Constituent particles are not strongly attracted towards each other. Inter-ionic force is weak, therefore ions are free to move, therefore they conduct electricity. Okay, here Na plus ion and Cl minus ions are free to move, therefore they conduct the electricity. Okay. Question number 8. Question is, what type of solid are electrical conductor, malleable and ductile? Malleable and ductile. हमें ये बताना है ऐसा कौन सा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, मेलेबल है और डक्टाइल है. So in metallic solid we discuss that constituent particles. In metallic solid, constituent particle is metal with positive charge, and in the surrounding electrons are free to move. Okay, so the constituent particles in metallic solid is metal with positive charge and free electrons. Force of attraction in metallic solid is metallic bond. Melting point and also boiling point is high. Melting point and boiling point is also high. Okay, then we discuss about the nature. We discuss that metallic solids are malleable. malleable का क्या मतलब होता है कि मैं हथौड़े से जो ये मेरा सॉलिड है उसको हथौड़े से मैं इसके ऊपर कोई मारूंगा तो मुझे जो शेप उसका करना है वो शेप में मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको तोड़े बिना.
इसको ब्रेक किए बिना मुझे ये अगर शेप चाहिए तो मैं हमर से मार के, मतलब हथौड़ी से मार के जो शेप में मुझे लाना है वो शेप में मैं ला सकता हूँ। ओके, तो मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो मेलेबल होते हैं। देन वी डिस्कस दे आर डक्टाइल, दे आर ऑल्सो डक्टाइल, मेटालिक सॉलिड्स आर ऑल्सो डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब है, तो खींच के मेरा जो ये सॉलिड होता है उसको यहाँ से और यहाँ से खींच के एक पतले से तार में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसे ब्रेक किए बिना एक पतले से तार में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हमें ये यहाँ पे क्या पता चल गया है कि जो मेटालिक सॉलिड होते हैं उनके पास मेलेबल और डक्टाइल ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको पता चल गया है। बाद में हमने क्या डिस्कशन किया था, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हमने डिस्कशन किया था कंडक्टिविटी के बारे में, कि हमने क्या बताया था कि जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। ठीक है, सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट, इन बोथ द स्टेट metallic solids are electrical conductors. We also discussed the examples. We also discussed example that Fe, copper, zinc and aluminum, these all are the metallic solid. Okay, हमने ये यहाँ तक डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे हमने मेटालिक सॉलिड पूरा एक बार रिवाइज फिर से हो गया है हमारा। ठीक है, आप एक बार फिर से पढ़ लेना, वहाँ पे सब है ही। क्वेश्चन नंबर 9, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिस पॉइंट। हमें लेटिस पॉइंट के बारे में बताना है। तो वी डिस्कस दैट वी हैव वन क्रिस्टल, वी हैव वन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल। ओके, इन दिस क्रिस्टल these points are called lattice points. These points are called lattice points. We discuss that lattice points and we also called it lattice point, and in lattice point we can arrange atom, molecule and also ions. Okay, also ions. Each lattice point represent one constituent particle. Each लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहाँ पे जो हमने देखा है वो क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। हमने आगे भी डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, एंड इन लेटिस पॉइंट मे बी एटम एंड मॉलिक्यूल एंड आयन, मीन्स कि लेटिस पॉइंट पे हम एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, इसमें से इन तीनों में से किसी भी एक को क्या कर सकते हैं, तो अरेंज हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द पैरामीटर्स दैट characterize unit cell. Okay, so we have one unit cell. This types of we have unit cell. In the unit cell we have three edges. This edge is called A, this edge is called B and this edge is called C. Edges, three edges are A, B and C. Here I am show you. Okay, then we discuss that between B and A, between B and A we have gamma, we have gamma angle. This angle is called gamma. Then we discuss between B and C, between B and C we have angle called is alpha. So here this angle is called alpha, this angle is called alpha. This is a gamma and this is a alpha. Then we discuss then between A and C we have angle beta, we have angle beta. So this angle is called beta. Okay, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो जो यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स होते हैं वो 6 पैरामीटर्स होते हैं। 3 जो होते हैं वो एज लेंथ होते हैं और एंगल कितने होते हैं, तो अल्फ़ा, बीटा और गामा। बी और ए के बीच में
अल्फा गामा एंगल होता है बी और सी के बीच में अल्फा, और ए के बी के बीच ए और सी के बीच में होता है बीटा। ये हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 11, distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell. Then we have to distinguish face centered and end centered unit cell. Okay, so in hexagonal and monoclinic, first we are going to write all the thing of a hexagonal. In hexagonal, alpha is equal to beta is equal to 90 degree, whereas gamma is equal to 120 degree, and edge length A is equal to B is not equal to C. Okay, so the 6 parameter angle alpha and beta in hexagonal is 90 degree, in gamma 120 degree, whereas edge length A is equal to B is not equal to C. Now we are going to write in monoclinic. In monoclinic also alpha is equal to beta is equal to 90 degree, but gamma is not, sorry, alpha is equal to gamma. Okay, wait. Okay, here alpha is equal to gamma is equal to 90 degree, and beta is not equal to 90 degree. So the angle of a alpha and gamma is equal to 90 and beta is not equal to 90, and all edge lengths are A is not equal to B and B is not equal to C in monoclinic. Okay, so हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेक्सागोनल यूनिट में क्या होते हैं, टू साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स आर परपेंडिकुलर एंड थर्ड एंगल इज़ 120. ओके, मतलब कि हमने जो बताया वही अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री और ये 120 है, और ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है हेक्सागोनल यूनिट में. मोनोक्लिनिक में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होता है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज क्या होता है 90 डिग्री, और बीटा क्या होता है, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. वी ऑलरेडी डिस्कस. ओके, now we have to discuss about phase center and end center. Okay, we have one unit cell. In this unit cell we know that atoms are arranged at the corner and in FCC atoms are also arranged at the center of a phase. Okay, whereas in end center atoms are arranged at corner as well as two opposite phases of a unit cell. ठीक है, फेस सेंटर में यूनिट सेल जो होते हैं, हमारे एटम्स जो होते हैं वो एक तो कॉर्नर में होते हैं और कहाँ पे होते हैं, तो फेस के सेंटर में होते हैं, जबकि एंड सेंटर में कॉर्नर पे होते हैं और दो अपोजिट फेजेस पे होते हैं. वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है. क्या है, तो फेस सेंटर यूनिट सेल लेटिस पॉइंट आर लोकेटेड एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द एवरी फेस, whereas in face center lattice point at corner and alternate face in abscissa z is equal to 4, whereas in end center z is equal to 2. Okay, question number 12, explain how much portion of the atom located at corner and body center of cubic unit cell is part of its neighboring unit cell. हमें ये बताना है कि कॉर्नर पे जो एटम होता है और बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है वो उसका कितना पार्ट जो है, उतना कितना पोर्शन जो है वो हमारा जो यूनिट सेल है
उसके अंदर कंट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक यूनिट सेल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा एक यूनिट सेल। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये पूछा क्या गया है कि ये जो एक कॉर्नर पे जो ये एटम होता है वो उसका कितना पार्ट्स जो होता है इस यूनिट सेल में, यहाँ पे जो हमारे पास ये यूनिट सेल है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये वापस एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पूरा है आधा पोर्शन जो है वो तो देख के ही पता चल रहा है कि निकल गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास ऐसा एटम होता है उसके बीच में ये और तीसरा पोर्शन जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, रुको इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि मान लो आपका ये एटम है कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला एटम है एक, ये यहाँ पे ये एज लेंथ। ठीक है, एक एज लेंथ ऊपर जो होता है वो, और एक एज लेंथ जो है वो नीचे होती है वो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आधा एटम तो निकल गया। चलो, आधा एटम तो हमारे पास यहाँ निकल गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना है, तो 1/2 है एटम्स। ये जो एटम है वो कितना है, तो 1/2 है। भाई यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एटम था उसका भी आधा हो गया ना। ये पोर्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ग्रीन पेन से जो मैं दिखा रहा हूँ उसका भी आधा हो गया। तो कितना हो जाएगा 1/2, मतलब हमारे पास आ गया 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। तो अभी क्या होगा कि ये जो यूनिट सेल है, उसके यहाँ पे उसके नेबरिंग में भी एक यूनिट सेल होगा। उसके साथ ही ये यहाँ पर इतना जो पोर्शन था आपका, ये जो पोर्शन था पूरा का पूरा शेयर होगा। तो ये इतना जो पोर्शन है वो कितनों के साथ शेयर होने वाला है, 2 के साथ। तो इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1/2। तो हमारा जो ये टोटल एटम था वो कितने, टोटल एटम में से इस यूनिट सेल में, यहाँ पे जो ये यूनिट सेल है उसमें कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1/8 आ गया। इन शॉर्ट आप इतना समझ सकते हो कि हमारा जो यूनिट सेल होता है वो दूसरे 8 यूनिट सेट के साथ अटैच होता है, और उसकी वजह से जो कॉर्नर वाला एटम होता है उसका सिर्फ 1/8 पोर्शन ही होता है जो हमारे यूनिट सेल में होता वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर में। तो बॉडी सेंटर तो वैसे बहुत ही ईजी है, फिर भी दिखा देता हूँ कि बॉडी के सेंटर में मतलब कि यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ये जो पूरा यूनिट सेल है उसके सेंटर में है, तो ये तो पूरा का पूरा ही कंट्रीब्यूट करने वाला है। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा ही कंट्रीब्यूट करने वाला है, पूरा का पूरा पोर्शन ही इस यूनिट सेल में वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर cubic unit cell is shared by 8 neighboring unit cell, hence its 1/8 portion of an atom। ओके, तो हमें पता चल गया ये तो एटम लोकेटेड एट द बॉडी सेंटर शेयर नो पोर्शन ऑफ इट नेबरिंग यूनिट सेल, इट्स बिलोंग फुल्ली टू 1 यूनिट सेल। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अभी आपको पता चल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, what is 2-dimensional coordination number of a molecule in square close packing layer। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था वो ए टाइप की होती है, मतलब कि एक लेयर के ऊपर ही दूसरा लेयर आने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये गया एक्स डायरेक्शन में। अब हम जाने वाले हैं वाई डायरेक्शन में। तो क्या बताया कि अगर ये ए लेयर है तो उसी के ऊपर दूसरा लेयर आने वाला है कुछ इस तरीके से। दूसरे लेयर को मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ही आता है। उसके बाद थर्ड लेयर जो होगा तो वो उसके एग्जैक्टली उसके नीचे ही आने वाला है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से देखा था, एक एक्स डायरेक्शन में, दूसरा देखा था हमने वाई डायरेक्शन में। अब हम बता सकते हैं कि ये जो एक एटम होता है, एक तो ये एटम के साथ अटैच होता है, दूसरा इस एटम के कॉर्नर के साथ, इस एटम के कॉर्नर के साथ, और इस एटम के कॉर्नर के साथ। ठीक है, अगर मैं इन सभी के कॉर्नर को जोड़ देता हूँ स्ट्रेट लाइन से तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलता है। क्या मिलता है, तो एक स्क्वायर मिलता है। इसी वजह से 2 डायमेंशनल में इस तरीके की ए टाइप की पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं,
और जो ये एटम होता है वो दूसरे 4 एटम के साथ होने की वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 हो जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14. We have one compound. This compound is form HCP structure. This compound form HCP structure. We have to find total number of void in 0.5 mole of this compound, and we also give how many tetrahedral voids are there. Okay, so here we have moles, and we all know that 1 mole is equal to 6.022 into 23 atom 23 atom. Therefore 0.1 mole is equal to 0.5 into Na, Avogadro number, which values is 6.022 into 10 is to 23. Whatever the value, just you have to put here. Whatever the value, just you have to put here. Okay, here means यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपको रखना है, ठीक है। ओके, now we know that in HCP, now we discussed how we are going to find atom per unit cell. Atom per unit cell, that 0.5 into Na is atom per unit cell, means Z value is 0.5 into Na. Okay, now we know that in octahedral and tetrahedral, octahedral values are 1 time to the per atom, मतलब कि जो octahedral voids होते हैं वो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो पर एटम यूनिट सेल होते हैं उसके कितने टाइम होते हैं, 1 टाइम होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू कितनी होगी, तो z की जो है वैल्यू होगी वही हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू होने वाली है। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू क्या होने वाली है, तो 2z होने वाली है। 2z मतलब कि जो ये वैल्यू है उससे डबल होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेट्राहेड्रल वॉइड में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं वो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। तो हम पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। तो in tetrahedral value is 2z, and we know that the z is equal to 0.5 into n. ये कैसे आया वो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 0.5 n। जो भी आपका आंसर आएगा वो उतने टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। तो हमें क्या करना है, एक तो ऑक्टाहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड को कर देना है। टेट्राहेड्रल वॉइड तो हमने ढूंढ लिया, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू कितनी थी, z के बराबर थी, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, आपको सम कर देना है। जो भी आंसर आया वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वो आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर कुछ इतना आ सकता है, ठीक है। ये भी गलत भी हो सकता है, आपको कैलकुलेट खुद से करना होगा, ठीक है। चलो, हेलो, question number 15. A compound is formed by two elements, M and Z, in which element N form CCP. जो N एलिमेंट है वो क्या, तो CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या हम उसे FCC भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी होगी इस कंपाउंड में, क्योंकि FCC में Z की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे N की वैल्यू भी आ जाएगी 4। तो हमें अभी यहाँ पे एक तो मिल गया कि N कितना होगा, तो 4 होने वाला है, ठीक है। दूसरा हमें क्या बताया गया है कि जो एलिमेंट M होता है वो 1/3 ऑक्यूपाई करता है टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड के। यहाँ पे CCP है तो Z की वैल्यू आती है 4, तो टेट्राहेड्रल वैल्यू कितनी होगी, 2Z होने वाली है। तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक तो N की वैल्यू 4 मिल गई और टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू 8 मिल गई। और ये जो
टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 1/3 जो है m एटम ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1/3 इंटू 8 आ जाएगा। n हमें मिला है 4, तो हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो m जैम n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक तो m की वैल्यू थी 8/3 जैम 4 आता है, ठीक है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8/3 जैम आ जाएगा 3 इंटू 4। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू 12। तो यहाँ से 4 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर आ जाएगा 2 जैम 3 का आपका आंसर आ जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, m जो है वो कितने हो गए, 2, और n जो है वो 3 हो गए। n जो है वो 3 हो गए यहाँ पे। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा M2N3 M2। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज़ हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। हमें देखना है कि हमें जो दिए गए हैं पैकिंग, लेटिस की पैकिंग जो हमें दी गई है उनमें से हाईएस्ट पैकिंग किसकी होगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो सिंपल क्यूबिक होते हैं उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 52 होती है, और जो वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 100 - 52 मतलब 48। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर की पैकिंग कितनी होती है, तो 68 होती है, और उसमें वॉइड कितने होते हैं, तो 100 - 68 तो 32। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो हेक्सागोनल या एफसीसी, जिसमें 74 परसेंटेज पैकिंग होती है, एंड द वॉइड इज 26। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज this hexagonal close packing or FCC, because in hexagonal or FCC the packing is 74 and number of void is 26. Lesser the number of voids, higher the packing efficiency. ठीक है, like and share my videos with your friends, give comments. Also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.